Assalamu alaikum students. Today we learn about the uterus. What we learn today is uterus introduction, uterus variation in size, shape with age, uterus normal measurement and uterus orientation. So what is uterus? Ultrasound of the female pelvis indicates the evaluation of the uterus should be include the size, shape and orientation of the uterus, as well as the assessment of the endometrium, myometrium and cervix. सो फीमेल स्कैन करते हुए जो यूट्रस की हमें साइज शेप और ओरिएंटेशन की इवैल्यूएशन करनी होती है। इसके अलावा एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम और सर्विक्स देखना होता है। यूट्रस के दो पार्ट्स होते हैं, दो मेन पार्ट्स होते हैं, सर्विक्स एंड द बॉडी। The fundus is the portion of the uterine body located along the upper surface of the uterus between the insertions of the fallopian tube. फ्लोपियन ट्यूब के दरमियान में जो पार्ट आता है वो उसे कहते हैं फंडस। उसके बाद यूट्राइन बॉडी। द बॉडी ऑफ द यूट्रस कंटेन्स endometrium centrally, myometrium peripheral to the endometrium and serosa along the outer surface of the uterus. So the portion between the fallopian tube is called fundus. This is uterine body and this is cervix. Cervix has two openings, internal os and external os, जिसे इंटरनल ऑरिफिस और एक्सटर्नल ऑरिफिस भी कहते हैं। एंडोसर्विक्स एंड एक्टोसर्विक्स। Uterine size varies. Uterine size and shape varies with each menstrual status and pregnancy history. So एज के लिहाज से यूट्राइन शेप और साइज डिफरेंट एजेस पे वेरी करती है। न्यूनेटल, प्री पिबर्टल एंड पिबर्टल एंड in the last postmenopausal. मेंस्ट्रुअल स्टेटस से मुराद है कि यूट्रस का कौन सा इस वक्त फेज चल रहा है, मसलन मेंस्ट्रुअल फेज, पॉलिफेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के तीन फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, पॉलिफेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। यूट्रन साइज एंड शेप वेरी करती है विद मेंस्ट्रुअल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी हिस्ट्री। विथ ईच प्रेगनेंसी हिस्ट्री साइज जो है यूट्रस का वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक इंक्रीज करता है। सो यूट्राइन रेशियोज चेंजेस विद एज। 1/3 versus 2/3. Uterine body is 1/3 and cervix is 2/3. In this image, the uterine body is 1 second and the cervix is also 1 second. In the third image, the uterine body is 2/3 and the cervix is 1/3. So this is neonatal uterus, prepubertal uterus, and at puberty or reproductive age. Neonatal uterus. The neonatal uterus is prominent for several weeks after birth, secondary to maternal hormones. After the hormonal effects subside, the uterus decreases in size. The neonatal uterus is prominent and measures up to 3.5 centimeter in length, which is equal to 35 millimeter. Cervix is dominant. Frontal cervix length ratio is 1:2. Endometrial lining is prominent. So in neonatal uterus, the uterus is prominent due to effects of maternal hormones after several weeks after birth. So जो यूट्रस है, न्यूनेटल यूट्रस है, वो प्रोमिनेंट होती है कुछ वीक्स के लिए, बट सर्विक्स जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है। सो फंडक्स सर्विक्स रेशो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अगर इमेज ड्रॉ की जाए तो यूट्राइन बॉडी वर्सेस सर्विक्स का साइज जो है वो सर्विक्स आपको कंपैरेटिवली यूट्राइन बॉडी एंड फंडस के ज़्यादा लग रही है। ठीक है, इसीलिए फंडस सर्विक्स रेशो है 1:2। इसके अलावा जो न्यूनेटल यूट्रस का लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर तक होती है और इंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रोमिनेंट होती है। इस इमेज में
ये न्यूनेटर यूट्रस है। इस इमेज में यूट्राइन बॉडी अगर आप देखें और सर्विक्स को देखें तो यहाँ पे यूट्राइन सर्विक्स जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट है और बड़ा है एज कम्पेयर टू द यूट्राइन बॉडी। सो फंडस सर्विस रेशो है 1:2। Prepubertal years. During the prepubertal years, the cervix is similar in size or more prominent than the uterine body and the fundus, resulting in an elongated or tubular configuration of the uterus. So prepubertal years में uterine size जो है uterine body का size वो आहिस्ता आहिस्ता increase करना शुरू करता है और वो इतना increase हो जाता है कि वो cervix के equal आ जाए। सो जो वो भी आहिस्ता आहिस्ता एक ट्यूबुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाता है। लेंथ इज 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर। फंडक सर्विस रेशो इज 1:1। इंट्रोमीटल इकोस आर नॉट विजिबल। सो जो यूट्रस है, यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स का रेशो है वो 1:1 होता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के तौर पे नज़र आता है और यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स का साइज कंपैरेटिवली इक्वल होता है। इंडोमेट्रियल इकोस हमें नहीं नज़र आते यूजुअली। सो यहाँ पे प्रीपुबर्टल स्टेज पे एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल का आपको यूट्रस नज़र आ रहा है जिसमें इलोंगेटेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है यूट्रस, और यहाँ पे यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स का कंपैरेटिवली साइज इक्वल है। So Fernex surface ratio is 1:1. Changes in the uterus as menarche approaches. The uterus remains small until the reproductive period approaches, beginning at approximately 8 years of age. At that time, the uterus begins to enlarge and the body and fundus increase in prominence relative to the cervix. The uterus reaches its adult size and configuration several years following menarche. So changes क्या क्या आते हैं जैसे जैसे फीमेल menarche पे पहुंचती है, आहिस्ता आहिस्ता जो यूट्राइन बॉडी है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगी साइज में। सो यूट्राइन बॉडी एंड फंडस वो इतनी इंक्रीज हो जाएंगी कि ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएंगी कंपैरेटिवली सर्विक्स के। और काफ़ी सालों बाद मेनार्की के काफ़ी सालों बाद हमें जो अडल्ट यूट्रस है वो मेच्योर यूट्रस है वो मिलेगी। Changes in the uterus as menarche approaches. Note the enlargement increase in prominence of the uterine body. यहाँ पे आप देखें यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स का रेशो, हमें यूट्राइन बॉडी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है एज कम्पेयर टू द सर्विक्स। सो फंडस सर्विस रेशो हुआ 2:1। During the reproductive years, the uterine body and the fundus are considerably larger than the cervix. Length increases up to 5 to 7 centimeter. Fundus to cervix ratio is 2:1. So, हमने अभी तक पढ़ा neonatal uterus, prepubertal uterus, changes following the menarche and during the reproductive years. So, क्या क्या changes आती हैं साइज में? एक, यूट्राइन बॉडी और फंडस का जो यूट्राइन बॉडी फंडस और सर्विक्स का रेशो होता है न्यूनेटल में 1:2। सो सर्विक्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है इन न्यूनेटल स्टेज पे एज कम्पेयर टू द यूट्राइन बॉडी। प्रीपुबर्टल स्टेज पे जो दोनों का रेशो है यूट्राइन बॉडी एंड सर्विक्स का वो होता है 1:1। और साइज इसके अलावा ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर्स फर्नेस सर्विस रेशो होता है 2:1। इसके अलावा लेंथ में जो चेंजेस आती हैं न्यूनेटल का यूट्रस की जो लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर तक होती है प्री प्यूबर्टल ईयर्स में, और इन लेटर स्टेजेस रिप्रोडक्टिव ईयर्स में 5 to 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे adult configuration of the uterus several years following the onset of menses, the uterine body is more prominent than the cervix. In the nulliparous 15-year-old girl, nulliparous woman वो होती है जिसने कभी जिसका कोई बच्चा नहीं होता, ना ही वो कभी प्रेग्नेंट हुई होती है। सो ये आपको इकोजेनिक जो एनिकोइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो है यूरिनरी ब्लैडर। उसके पोस्टीरियरली जो आपको नज़र आ रहा है वो है यूट्रस।
यूट्रस की यहाँ पे प्रोमिनेंस देखें तो यूट्राइन बॉडी आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू द सर्विक्स, सो द फंडस सर्विस रेशो इज़ 2:1। नॉर्मल मेजरमेंट क्या होती है यूट्रस की? नॉर्मल nulliparous adult uterus measures up to 8 centimeter into 4 centimeter into 5 centimeter in length, AP dimension and width respectively. सो जो लेंथ है अडल्ट यूट्रस की वो 8 सेंटीमीटर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि न्यूनेटल यूट्रस में 3.5 सेंटीमीटर तक लेंथ होती है, प्री प्यूबर्टल में 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर एंड इन रिप्रोडक्टिव ईयर्स में फॉलोइंग मिनार के 5 to 7 सेंटीमीटर। सो अडल्ट एज में 8 सेंटीमीटर तक लेंथ पहुंच जाती है, 4 सेंटीमीटर तक एपी डायमेंशन एंड 5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है। इसके अलावा uterine size is often larger in patients with a history of pregnancy, increasing approximately 1 centimeter following the first pregnancy, measuring up to 2 centimeter larger than a nulliparous uterus in a multiparous woman. So uterine size जो है वो हर प्रेगनेंसी के साथ 1 सेंटीमीटर तक इंक्रीज होता है। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो हम उसे 2 सेंटीमीटर तक नॉर्मल कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर अडल्ट साइज 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, सो अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद हम अप टू 9 सेंटीमीटर तक इसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे और 10 सेंटीमीटर तक भी नॉर्मल कंसीडर करेंगे। सो यूट्रस का साइज जो है, जो लेंथ है, वो डिफरेंट एजेस पे कितनी होती है। यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशंस दिखाई हुई हैं। न्यूनेटल में 3.5 सेंटीमीटर, इन्फेंट में 2.5 to 3 सेंटीमीटर, 2 to 7 years में 3.3 to 4 सेंटीमीटर, 10 years में 4 to 5 सेंटीमीटर, 13 years 5.4 to 7.6 सेंटीमीटर, नेलीपेरस अडल्ट में 8 to 9 सेंटीमीटर और मल्टीपेरस अडल्ट में 11 to 12 सेंटीमीटर, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में 5 to 12 सेंटीमीटर तक होती है। यूट्राइन मेजरमेंट। अब हम यूट्रस की मेजरमेंट कैसे करते हैं। Uterine length is measured from top of the fundus to the bottom of the cervix in the sagittal scan plane. The anterior posterior measurement is obtained perpendicular to the longitudinal plane, usually on the same image as the longitudinal measurement. Width can be obtained on transverse view. So this is trans-abdominal image of the uterus and urinary bladder. Urinary bladder के बिल्कुल posterior हमें uterus नजर आएगी। uterus हमें longitudinal scan पे elongated नजर आएगी। fundus से cervix तक हम length लेंगे and AP dimension हम anterior to posterior इस तरह से measure करेंगे। So we take measurement from the fundus to the cervix and for measuring the length of the uterus, and for AP dimension we take measurement from anterior abdominal wall, anterior uterine wall to the posterior uterine wall. So in transverse view, the uterus is we measure the uterus from right to left. सो ट्रांसवर्स व्यू में हम राइट से लेके लेफ्ट तक इसकी इस तरह से विड्थ कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। सैजिटल प्लेन पे हम प्रॉप की पोजीशन रखेंगे यू 90 डिग्री एंगल पे। यहाँ पे देखें प्रॉप 90 डिग्री एंगल पे प्लेस है अम्बलाइकस और प्यूबिस सिम्फिसिस के दरमियान हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पे। हमें स्ट्रक्चर्स क्या क्या नज़र आएंगे। ब्लैडर, हमें एनीकोइक नज़र आ रही है, यूट्रस इलोंगेटेड नजर आ रही है, इंटरमीडियम लाइनिंग इकोजेनिक मिलती है, हाइपोकोइक हमें मायोमीट्रियम मिलती है एंड सिरोजल आउटर लेयर में मिलती है। सो मायोमीट्रियम, इंडोमीट्रियम, सर्विक्स एंड वजाना, और ये पोस्टीरियरली आपको रेक्टम नजर आती है। जो लॉन्गिट्यूडनल व्यू पे हम लेंथ कैसे लेंगे, फंडस टू सर्विक्स, एपी डायमेंशन पे हम मेजरमेंट लेते हैं। एपी ट्रांसवर्स व्यू, ट्रांसवर्स व्यू हम कैसे लेंगे कि 180 डिग्री पे हमने प्रॉप रखनी है। सो 180 डिग्री पे जब हम प्रॉप रखेंगे तो हमें यूट्रस कुछ इस तरह से नजर आएगा।
हमें यूट्रस मिलेगा यूं ओवल शेप। राइट टू लेफ्ट हम मेजर करेंगे विड्थ। राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, ये जो अंदर हमें एनिकोसिस्टिक स्पेसेस नजर आ रहे हैं ये फॉलिकल्स हैं। ट्रांस वजाइनल अप्रोच में भी हम फंडस टू सर्विक्स तक लेंथ लेंगे। एपी डायमेंशन में ये एपी एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायमेंशन लेंगे और विड्थ भी इसी तरह लेंगे ट्रांसवर्स व्यू में। Menopause. Menopause is defined as beginning 1 year after cessation of menses. The uterus atrophies following menopause, progressively decreases in size, particularly during the first decade after menopause. The disproportion in size of the uterine body relative to the cervix typical of the reproductive years also diminishes. So, जो मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज होता है कि सेसेशन ऑफ मेंसेस completely stop होता है menstrual cycle after as beginning first year after cessation of the menses completely menstrual cycle stop होगा for up to 1 year। 12 months तक completely cycle stop होगा। इसके अलावा मेनोपॉज में जो यूट्राइन बॉडी है वो एट्रोफी उसकी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, वो उसकी एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी, वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से जो साइज है वो हमें कम मिलेगा एज कम्पेरेटिव टू द एडल्ट रिप्रोडक्टिव एज। 3.5 टू 6.5 सेंटीमीटर तक लेंथ होती है एंड 1.2 टू 2 सेंटीमीटर तक एपी डायमेंशन। इंडोमेट्रियम बिकम्स थिन, उसकी भी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, सो लेस देन 8 मिलीमीटर। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे यूट्रस आपको बहुत छोटी सी नज़र आ रही है। लेंथ है 6 सेंटीमीटर और एपी डायमेंशन है 2.3 सेंटीमीटर। यूट्राइन ओरिएंटेशन। सो यूट्राइन ओरिएंटेशन बेसिकली क्या होती है? यूट्रस किस तरह से ब्लैडर के अगेंस्ट present होगी। The terms anteverted, anteflex, retroverted and retroflex are commonly used to describe uterine orientation. Anteverted, retroverted, anteflex, retroflex। इन 4 इमेजेस पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ब्लैडर के अगेंस्ट टुवर्ड्स द ब्लैडर एंटीवर्टेड, ठीक है, अवे फ्रॉम द ब्लैडर रिट्रोवर्टेड, और यहाँ पे अब टुवर्ड्स द ब्लैडर तो है लेकिन यहाँ पे आपको एक बेंडिंग नज़र आ रही है जिसे फ्लेक्शन कहते हैं। और यहाँ पे रिट्रोवर्टेड भी अवे फ्रॉम द ब्लैडर, बट यहाँ पे भी आपको एक फ्लेक्शन नज़र आ रही है। अब वर्टेड क्या है और फ्लेक्शन क्या है ये हम आगे देखते हैं। द सर्विक्स वर्टेड डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ द cervix relative to the axis of vagina, and the flexion describes the orientation of the uterine body relative to the cervix. सो यूट्राइन वर्जन क्या है? ये जो एंगल है बिटवीन द विजाइना एंड द सर्विक्स, सर्विक्स और वजाइना के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम वर्जन कहेंगे, और यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स के दरमियान जो एंगल बनेगा उसे हम फ्लेक्शन कहेंगे। एंटीवर्टेड और रेट्रोवर्टेड हमें अब अल्ट्रासाउंड पे कैसे नजर आती है? सो ऑन ट्रांस abdominal ultrasound, the fundus of the anteverted and anti-flexed uterus points towards the anterior portion of the pelvis, whereas the fundus of retrovertebral retroflex points towards the posterior portion of the pelvis. The bottom image, or the bottom of the image on the transabdominal scan. So यहाँ पे ये एक इमेज है। इमेज का ये राइट साइड होता है, ये लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट, anterior of the image and posterior of the image। जब हमें यूट्राइन फंडस पॉइंट करता नजर आएगा टुवर्ड्स द anterior पोर्शन ऑफ द इमेज और टुवर्ड्स द anterior ऑफ द ये ब्लैडर, तो ये एंटी है। जब ये हमें टुवर्ड्स द posterior पोर्शन ऑफ द इमेज हमें पॉइंट आउट करता नजर आएगा तो ये posterior रिट्रोवर्टेड है, ये रिट्रो है। सो पहले हमने इमेज में देखना है कि ये एंटी है कि रिट्रो है। हमें कैसे पता चलेगा? ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे ब्लैडर की हमने यूट्राइन फंडस देखना है। यूट्राइन फंडस अगर एंटीरियर टू द इमेज हमें पॉइंट आउट करती नजर आ रही
नज़र आ रही होगी तो ये एंटी है। और अगर हमें जो यूट्राइन फंडस है वो पोस्टीरियर टू द इमेज नज़र आ रही होगी, पोस्टीरियरली इंडिकेट कर रही होगी, पॉइंट कर रही होगी, तो ये रिट्रो है। अब वर्जन और फ्लेक्शन का हम फैसला कैसे करेंगे? अगर तो यूट्राइन बॉडी में हमें बेंडिंग नज़र आ रही है, ठीक है, तो ये फ्लेक्शन है। और अगर हमें ये सर्विक्स और वजाना में एंगल मिल रहा है, जिस तरह से ये वी शेप यहाँ मिल रहा है, तो ये वर्जन है। सो दिस इस इन दिस इमेज यूट्रस इज एंटीवर्टेड और in this image uterus is retroverted. There is no flexion in the uterine body. So transvaginal scan पे the fundus of the antevertebral and antiflex uterus points towards the right side of the image, and the fundus of the retrovertebral and retroflex uterus points towards the left side of the image. कैसे? ट्रांस वजाइनल स्कैन पे अगर हमें यूट्राइन बॉडी राइट साइड की तरफ पॉइंट आउट करती नजर आएगी तो ये एंटी है, और अगर ये लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट आउट करती नजर आएगी तो ये रेट्रो है। इमेज का हमेशा हमेशा ये साइड राइट होती है और ये साइड लेफ्ट होती है। बिल्कुल इसी तरह इमेज की ये साइड राइट है, बी इमेज की, और ये साइड लेफ्ट है। सो ये ट्रांस वजाइनल स्कैन पे हम कैसे पता चलेगा हमें कि ये रिट्रोवर्टेड है या एंट्रीवर्टेड है? तो अगर यूट्राइन फंडस राइट साइड पे इंडिकेट कर रही होगी तो ये एंटी है, और अगर लेफ्ट साइड पे इंडिकेट कर रही होगी तो ये रिट्रो है। फ्लेक्शन हमें अगर यहाँ यूट्राइन बॉडी में मिलेगी तो एंटी एंटी फ्लेक्स हो जाएगा, और अगर हमें यहाँ पे अगर फ्लेक्शन नज़र आएगी तो ये रिट्रोफ्लेक्स हो जाएगा। इस इमेज में हमें फ्लेक्शन नज़र नहीं आ रही, सो ये एंटी वर्टेड है और ये रिट्रोवर्टेड है। ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे हमें कैसे पता चलेगा? ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे हम देखेंगे एंटीरियर और पोस्टीरियर, जबकि ट्रांस वेजाइनल स्कैन में हम देखेंगे राइट एंड लेफ्ट। सो अंटीरियरली अगर पॉइंट आउट कर रहा होगा यूट्राइन फंडस सो तो वो एंटी है, और अगर पोस्टीरियरली पॉइंट आउट कर रहा होगा तो वो रिट्रो है। बिल्कुल इसी तरह ट्रांस वेजाइनल स्कैन में अगर राइट साइड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा तो वो एंटी है, और अगर लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा तो वो रिट्रो है। इसके बाद हम देखेंगे यूट्राइन बॉर्डिंग में अगर हमें बेंडिंग नज़र आ रही है, ठीक है, तो वो फ्लेक्शन होगी, और अगर नहीं तो यहाँ पे आपको वर्जन मिलेगी सर्विक्स और वजाइना में। बिल्कुल इसी तरह हम दोनों ट्रांस वजाइनल स्कैन पे भी फ्लेक्शन और वर्जन देखेंगे। यहाँ पे आपको इमेज पे ये ट्रांस एब्डोमिनल इमेज है। सो ट्रांस एब्डोमिनल इमेज में हम देखेंगे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर, यहाँ पे यूट्राइन फंडस जो है वो पोस्टीरियर टू द इमेज है, पोस्टीरियरली इमेज में को पॉइंट आउट कर रहा है। सो ये हमें कंफर्म हो गया ये रिट्रो है। अब इसमें फ्लेक्शन है या नहीं है? अब देखें यहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग फ्लेक्स्ड है, सो यूट्राइन बॉडी यहाँ पे फ्लेक्स्ड है, तो ये रिट्रो फ्लेक्स्ड है। बिल्कुल इसी तरह ये ट्रांस एब्डोमिनल इमेज है। ट्रांस एब्डोमिनल इमेज में हम देखेंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ऑफ द इमेज। सो यूट्राइन बॉडी यहाँ पे पोस्टीरियर इंडिकेट कर रही है, सो ये रिट्रो हुआ। यहाँ पे कोई फ्लेक्शन हमें नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए ये रिट्रोवर्टेड है। बिल्कुल इसी तरह ये ट्रांस वजाइनल इमेज है। ट्रांस वजाइनल इमेज में हम देखते हैं राइट एंड लेफ्ट। सो यूट्राइन फंडस जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ इंडिकेट कर रही है, तो ये रिट्रो है, और यहाँ पे हमें फ्लेक्शन भी नज़र आ रही है, तो ये रिट्रो फ्लेक्स्ड है। बिल्कुल इसी तरह ट्रांस वजाइनल इमेज में हम दोबारा देखेंगे राइट और लेफ्ट, तो यहाँ पे भी यूट्राइन फंडस जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है, सो ये रिट्रो है। यूट्राइन बॉडी में हमें कोई फ्लेक्शन नज़र नहीं आ रही, तो ये रिट्रोवर्टेड है। यहाँ पे ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन में ये ब्लैडर, और यहाँ पे जो ये यूट्राइन फंडस है वो एंटीरियरली पॉइंट आउट कर रही है, तो ये एंटी हुआ। इसके अलावा यहाँ पे हमें कोई फ्लेक्शन नज़र नहीं आ रही,
वर्जन नज़र आ रही है, एंगल नज़र आ रहा है सर्विक्स और वजाइना में। सो ये एंटीवर्टेड है। बिल्कुल इसी तरह ये ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे आप देखें, यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे जो यूट्रस है वो उसका यूट्राइन फंडस हमें एंटीरियरली पॉइंट आउट कर रहा है। सो ये एंटी है। इसके अलावा यहाँ पे कोई फ्लेक्शन नज़र नहीं आ रही, वर्जन नज़र आ रही है सर्विक्स और वजाइना में। सो ये एंटी वर्टेड है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।